Hello everyone, welcome to the Inverse Proportion demo class prepared by me Aditya Sharma. What is inverse proportion? Let's first look at the definition or what is meant by the word inverse. Inverse का मतलब क्या होता है? Something that is the opposite or reverse of something else. कुछ चीज़ जो दूसरे का opposite हो या उसका उल्टा हो. For example, up is opposite of down. ऊपर opposite है नीचे का. ट्रू ऑपोजिट ऑफ फॉल्स, ट्रू ऑपोजिट है फॉल्स का. प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब होता है द रिलेशनशिप ऑफ वन थिंग टू अनदर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, साइज और नंबर और रेशियो. दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए. वो रिलेशनशिप क्वांटिटी में हो सकता है, मतलब उनकी गिनती में या उनके नंबर में या उनके रेशो में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यू आर प्लेइंग फोर्टनाइट ऑन योर फोन, राइट? Now, the longer you continue to play Fortnite on your phone, the faster the battery of your phone will drain, right? मतलब अगर आप 1 घंटा खेला अपने फोर्टनाइट तो 30% मान लीजिए आपकी बैटरी फ़ोन की गई. तो अगर आप और ज़्यादा खेलेंगे तो और ज़्यादा कम होएगी. So we can say that the time that you spent on Fortnite, as it increases, the battery percentage of your phone decreases. So both of them are in inverse proportion. Now let's look at the mathematical application for this. Here we have a table. On the upper row we have prices of each pen, right? Starting from 10 rupees per pen to 60 rupees per pen, and below we have the number of pens that can be bought for each of that price. So if we have 1200 rupees here, how many pens can you buy if each pen costs 10 rupees? You can buy 120 pens. If you have 1200 again and the price of each pen goes up from 10 to 20, then you can buy 60 pens. And similarly, if the price of each pen is at 60 rupees, you can buy only 20 pens. Now if you see here, as the price of each pen, say x, right, increases. Now we are calling the price of each pen with the variable x, and it is increasing. The number of total pens, let's call that number y, that can be bought for that price decreases. जैसे कि एक पेन का प्राइस मान लीजिए 10 है, उसको हम ले लेते हैं x, ठीक है? तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, 10 से 20 हुआ, 60, 30, 40, 50, 60, तो आप देख सकेंगे कि जितने आप पेन खरीद सकते हो उस प्राइस पे वो कम होते जा रहे हैं. पहले 120 you can buy, then you can only buy 60, then 40, then 30, 20 and so on. Now also if you look at this product of this upper row and the lower row corresponding values like 10 and 120, 20, 60, 30, 40, it will always be 1200, which is the constant here. Alright, now let's call this constant as k. Okay, so we can say thus two quantities x and y. X was what? Price. Y is the number of pens for that price, are said to vary inverse proportion. दो क्वांटिटीज़ x और y इनवर्स प्रोपोर्शन में कही जाती हैं जब उनके बीच में एक रिलेशन होता है. द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू k, और k क्या है? इससे कांस्टेंट टर्म. नाउ वी विल डिराइव अ फॉर्मूला फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. Okay, now continuing from the previous page, x is y product is equal to k. Now if y1 and y2 are the values of y corresponding to the values x1 x2 of x, इसका मतलब क्या है? Let's go back to this table again. मान लीजिए कि y1 हो गया 10 और 20, और नहीं, y1 हो गया 120 60, क्योंकि हमने y नंबर ऑफ पेन्स को दिया था ना, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या हो गई? x1 x2 दैट इज़ 10 और 20, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 x1 20 x2, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फिर से क्या? y1 120 और y2 60. अगर इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 10 इंटू 120 विल बी इक्वल to 20 into 60, which will be equal to 1200, right?
तो इसको जो हमने ये जो एक्सप्रेशन यहाँ निकाला था, इसको हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं ऐसे कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू k, जो कि मैंने अभी बताया। या फिर इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे कि x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1, राइट। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, इससे आपको बेटर समझ आएगा। A factory requires 45 machines to produce a given number of articles 60 days. 45 मशीन लगती हैं गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बनाने में 60 दिनों में। और गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने भी हो सकते हैं, 100, 50, 200, 300। मान लो शूज़ बना रही है फैक्ट्री या टीवी बना रही है, तो 45 मशीनें लगती हैं, 60 दिन लेती हैं। और वो मान लीजिए कि 100 टीवी बना रहे हैं, मतलब जितने भी हैं, वो ज़रूरी नहीं है कितने बना रहे हैं, लेकिन ये हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन में से। फिर आगे क्या पूछ रहा है कि कितनी मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 50 डेज। फॉर एग्जांपल 100 ही मशीन, 100 ही टीवी बन रहे हैं, लेकिन अगर हम मशीनें 45 ही रखें, लेकिन दिन हम घटा दें, 60 से 50 करें, 10 दिन हम हटा दें, तो फिर मशीनें हमें कितनी बढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कम दिन में वही सेम काम कम दिन में करना है, तो ऑब्वियसली हमें मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। तो उसका क्या फॉर्मूला है, हम फिर से ऐसा टेबल बना लेंगे इधर, जैसा हमने बनाया था यहाँ पे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ऐसे टेबल ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो एक हमने रो ले ली नंबर ऑफ़ मशीन्स की, ये वाली हम ले लेंगे एक्स वाली रो, जो हमने पिछली में प्राइस को किया था ना एक्स, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ मशीन्स को एक्स कर दिया, और नंबर ऑफ़ डेज जो है इसको हमने कर दिया वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में से उठा लेते हैं, नंबर ऑफ़ मशीन्स पहले की थी 45, राइट, और उनमें डेज कितने लेते 60, तो हमने लिख दिया 45 और 60। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें हमें तो बल्कि निकालना है कि हमें कितनी मशीन चाहिए होंगी सेम काम करने के लिए 50 दिनों में, तो हम उसको ले लेते हैं एम, ठीक है। यहाँ हमने स्टेटमेंट डाल दी कि लेट द नंबर ऑफ मशीन डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 50 डेज बी एम, ठीक है। मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एम डेज में एम मशीन्स चाहिए रहेंगी 50 डेज में बनाने के लिए। तो हमने 45, 60, एम और 50। नाउ जो हमने फॉर्मूला निकाला था ऊपर ये वाला कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू के, तो यहाँ पे बता सकते हैं x1 y1 क्या है। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। सो यहाँ पे हम देखेंगे 45 इंटू 60 इज इक्वल टू m इंटू 50, राइट। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप ये वाली लाइन ज़रूर पढ़ लें। इसमें क्या लिखा है, इंक्रीज नंबर ऑफ मशीन विल प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन फ्यूअर डेज, दस द नंबर ऑफ मशीन्स एंड द नंबर ऑफ डेज आर इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे जैसे हम मशीनें बढ़ाते जाएंगे उतने कम दिन में काम होएगा, और 100 मशीन लगा देंगे उससे 20 दिन में काम हो जाए, ठीक है। अगर मशीन 10 यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो लगाया 45 इंटू 60 इक्वल टू एम इंटू 50, राइट। हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, एम को यहाँ ले जाके और 50 या 50 को हम यहाँ ले जाते हैं इनके नीचे, तो एम अकेला रह गया, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 54। इसका मतलब क्या है, therefore 54 machine would be required to produce the same number of articles 50 days. Alright, so that's the end of this demo class. Thank you for watching. If you have any doubts, please let me know in the comments below.